पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next lesson in Vocabulary Booster brought to you by PT Education. Thank you so much for all the love you have shown for the first lesson of this series. मुझे बहुत खुशी है कि आपको हमारा पहला लेसन Vocabulary Booster का बहुत पसंद आया। तो बस अब ये जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू होगी। आपको यदि पसंद आ रहा है and you are responding positively, then the journey will continue. Welcome to PT's Vocabulary Booster, vocabulary for competitive exams plus practice questions. करके दिखाएंगे। लर्न वर्ड्स विद टेक्निक्स दैट मेक देम स्टिक फॉर एवर। हमारा यही मकसद है, आपको वोकैबुलरी इतने यूनिक तरीके से पढ़ाएं कि एक बार सीरियसली आपने सेशन देख लिया एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स इन पैरेलल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू शुड नॉट फेस टू मच ऑफ अ डिफिकल्टी ट्राइंग टू रिकॉल दीज वर्ड्स। और जिन्होंने पहला सेशन ध्यान से देखा और अपनी नोटबुक बेटा जरूर बना लेना पीटीज वोकैबुलरी बूस्टर के नाम से। सिर्फ देखोगे तो सिर्फ आनंद मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। Vocabulary Booster, learn words with techniques that make them stick forever. We start with some motivational words for the day. All progress takes place outside the comfort zone. बहुत ही खूबसूरत विचार है। Unless and until you are willing to pull yourself out of your own imposed zone of comfort, you can never prosper, never progress. तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत पीड़ा तो जरूरी है। नो पेन नो गेन। Vocabulary Booster will offer you vocabulary for competitive exams focused on the actual needs. जिस तरह से परीक्षाएं आती हैं उसी हिसाब से हम वो वर्ड्स पढ़ाएंगे। Practice questions so that you can continuously keep benchmarking whether you have truly understood or not. हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में अंग्रेजी हिंदी दोनों में समझाऊंगा। नॉलेज के लिए आपको बोधी बूस्टर पोर्टल 360 डिग्री सपोर्ट 24/7 फ्री अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ऑल दिस इज फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन। विच एग्जाम्स डू वी कवर? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, स्टेट पीएस, CGL, CDS, रेलवेज, हर प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम्स में वोकैबुलरी आएगी ही आएगी। एंड व्हाट आई एम टीचिंग यू इज नॉट जस्ट वर्ड्स बट अ होल अप्रोच। तो आप सिंसियरली फॉलो करें। 25 सालों से बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है तो बहुतों का बहुत भला हो गया। आप बस लाभ उठाते रहें एंड दैट जस्ट डिमांड सम सिंसियरिटी फ्रॉम यू। MBA entrance exams, GDs and interviews. I believe it's time for us to begin the work today. We begin with vocabulary for competitive exams, our session number 2. The theme for today's session is world events. विश्व भर में हुई घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द आज हम आपके लिए लाए हैं। इससे चीजों को याद रखना और सरल हो जाएगा। तो हम इसको थीम बेस्ड ऐसे ही चलाएंगे। We start with the very first one, Holocaust. Very powerful word. Let's begin our learning. The massive state-sponsored Holocaust carried out by the Nazis rewrote world history post 1940s. बहुत ही खूबसूरत वाक्य है जिसमें बहुत दर्द छुपा हुआ है कि बहुत बड़ा राज्य समर्थित या प्रायोजित होलोकॉस्ट जो नाजी रेजीम ने चलाया था उसने 1940 के बाद के विश्व इतिहास को फिर से लिख दिया, पुनर्लिखित कर दिया। Why? Something really bad must have happened. वो भी अभी देखेंगे, बट हमारा मेन फोकस वर्ड्स लर्निंग पर है। Meaning. Now the word Holocaust has two very different meanings. First, it refers to the specific event of mass murder of Jews, यानी कि यहूदी लोग during 1941 to 45 across Europe. And the second meaning of the word Holocaust is large scale destruction. बहुत बड़े पैमाने पर किया गया विनाश। तो ये दो अलग अलग मीनिंग है, इसीलिए हमने सेपरेटर डाल दिया है। Synonyms. For the very first meaning, the synonyms यानी कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होंगे genocide यानी the murder or the killing of a whole race, that is genocide. तो किसी भी वर्ड में एंड में साइड लगा दिख गया CIDE तो it refers to खचाक. So what is the murder of a husband called? Murder of a wife called? Brother, sister, father, mother, king. Do tell us the words in English which refer to the murder of these individuals. All the husbands out there, beware. All the wives out there, beware. Just kidding. Don't take me too seriously on this one. Racial killing, extermination. Extermination बहुत ही खतरनाक शब्द है, ध्यान रखना. दूसरा जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन था उसके सिनोनिम्स यानी उसके पर्यायवाची होंगे carnage, inferno, annihilation.
एनाहिलेशन का रूट है निहिल, निहिल का अर्थ है रिड्यूस टू जीरो। तो ये बड़े पावरफुल शब्द हैं सारे, हैंडल विथ केयर। एंटोनिम्स, अब इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द देख लें, यानी कि विलोम शब्द। नर्चरिंग, जब आप किसी को सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट। गुड फॉर्च्यून यानी बहुत अच्छी किस्मत, मिरेकल यानी चमत्कार, एंड प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, जो विनाश में तो हो नहीं सकती। पार्ट ऑफ स्पीच, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर लर्निंग वर्ड्स यू मस्ट नो व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट इज। हाँ, सतही सतही आपको सिर्फ फर्जी लर्निंग करनी है तो बात अलग है, बट इफ यू आर अपियरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू डिग डीप, वेदर यू लाइक और हेट ग्रामर इज नो वंस कंसर्न। ये पॉइंट आप समझ गए, आपको बहुत फायदा होगा, ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, होलोकॉस्ट इज अ नाउन, ये एक चीज है, होलोकॉस्ट, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव। प्लूरल विल बी होलोकॉस्ट्स, जैसे एक आप एस ऐड कर दीजिए। और बहुत लूजली, लूजली का मतलब है टेक्निकली ये सही नहीं है, लेकिन डे टू डे की भाषा में होलोकॉस्टेश हम बोल सकते हैं, अवॉइड करना वैसे ये बोलना। यूजेज टिप, we use the word holocaust when some massive destruction is intended, or we will use the holocaust when we wish to refer to the large scale attempt to exterminate the Jews by the Nazi regime. नाजी regime के टॉप 5 या चलो 3 लीडर्स के नाम हमें जरूर बताइएगा, एडोल्फ हिटलर के अलावा। और एडोल्फ हिटलर की किताब का नाम भी बताओ, which is mentioned by everyone and read by no one. ये बड़ी समस्या है आजकल लोगों के साथ। रिस्क, दिस वर्ड इज नेगेटिव एंड कैरी सीरियस पॉलिटिकल ओवरटोन्स, बहुत सावधानी से यूज करना। यदि आप यूरोप गए हुए हैं, वहां तो ये वर्ड हो सके तो यूज ही मत करना भैया, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। द रूट, नाउ द लर्निंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम रूट्स, यानी कि इनका जो उद्गम होता है शब्दों का, उस विज्ञान को कहते हैं इटाइमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द वर्ड्स रूट्स। Holocaust is derived from the Greek holokostos or holos, which means whole यानी कि संपूर्ण, and kostos यानी कि burnt यानी पूरी तरह से जला दिया गया। तो ये होलोकॉस्ट वर्ड आपको समझ में आ गया। तो मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग बताया, इसके 2 अलग अलग अर्थ हैं, क्लियर है। फिर हमने सिनोनिम्स यानी समानार्थी देखे, जेनोसाइड, रेशियल किलिंग, एक्सटर्मिनेशन, कार्नेज, इन्फर्नो, एनाइलेशन। फिर हमने विलोम शब्द देखे, नर्चरिंग, सपोर्ट, गुड फॉर्च्यून, मिरेकल, प्रोस्पेरिटी। मैंने आपको आज बहुत सारे प्रश्न दे दिए हैं। एडोल्फ हिटलर के टॉप 3 लेफ्टिनेंट्स के नाम बताइए, अदर देन एडोल्फ हिटलर। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी उसका नाम बताइए। और एक और प्रश्न भी दिया था, आई अवेट योर आंसर्स लेडीज एंड जेंटलमैन। Part of speech, usage tip, and the rest. Clear? Now, if someday in the future nations really go to war with each other using nuclear weapons, this is how a major city would look like. इस तरह होगा nuclear holocaust, and nuclear holocaust will always be accompanied by MAD, MAD. I await. What is MAD? Comments में मुझे बताओ. What is MAD? अब आते हैं ज्यूइश होलोकॉस्ट पे। जब हिटलर की नाजी जर्मनी अपने शबाब पे थी, तब जर्मनी के इन देशों की हालत देखिए। द परसेंटेज ऑफ जूस हु वर किल्ड अक्रॉस द नेशंस ड्यूरिंग द नाजी ऑपरेटेड होलोकॉस्ट। तो आप देख सकते हैं जो काले में है वो 80 से 90% जूस नाजीज के आने के पहले के मार दिए गए, एंड सो ऑन। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डेडली ह्यूमन इवेंट इन हिस्ट्री। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड डेथ कैंप्स, ये 2 नए शब्द और आ गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, डेथ कैंप्स। इसके बारे में आप और पढ़िएगा। यदि आपको इसके बारे में कुछ कहना है हमें बताइएगा। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। ट्रेबलिंका, सोबीबोर, ऑश्विश, बेरकनाउ, ये 3 वर्ड तो खास तौर पर याद रखना, आपको बहुत काम आएंगे। एंड दकाउ, दकाउ इज अनदर वन। Medical experiments were carried out on Romani children in the worst of the camps, Auschwitz. तो ये नाजी लोगों ने जिस तरह के भारी अत्याचार किए, जब उन्होंने रोमानी बच्चों को पकड़ लिया था तो उन्होंने उनके ऊपर अलग अलग मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या आप बता सकते हैं 1940s में एग्जैक्टली द सेम स्टोरी वाज रिपीटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया, बाय whom, जिसका रिफ्लेक्शन आज के हमको रिलेशंस में दिखाई देता है। तो अभी तक हमने 12 वर्ड डिस्कस कर लिए, होलोकॉस्ट, जेनोसाइड, रेशियल किलिंग, एक्सटर्मिनेशन, कार्नेज, इन्फर्नो, एनाहिलेशन, नर्चरिंग, सपोर्ट, गुड फॉर्च्यून, मिरेकल, प्रोस्पेरिटी। हिंदी में क्या होंगे शब्द? एक बेसिक बात याद रखिएगा, जितना आप अंग्रेजी के प्रति जिज्ञासु हैं और उत्सुक हैं, द इंटरेस्ट यू शो एज फार एज लर्निंग इंग्लिश इज कंसर्न, अपनी खुद की भाषा के प्रति भी उतना ही सम्मान रखो।
अ नेशन दैट कैन नॉट रिस्पेक्ट इट्स ओन लैंग्वेजेस इज अ डेड नेशन, ये कभी भूलना मत, एंड यू आर द नेशन। सर्वनाश, प्रलय, विध्वंस, तबाही, हत्या, कांड। तो ये सारे बेहद मोटिवेशनल शब्द देखने के बाद आइए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड विद द थीम वर्ल्ड इवेंट्स, इगैलिटेरियनिज्म। पहले तो इस शब्द को 10 बार जोर जोर से बोल लेना, इगैलिटेरियनिज्म। और अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो टिपिकल इंडियन एजुकेटेड लोगों की तरह आप बोलिएगा इगैलिटेरियनिज्म। अरे यार क्यों फर्जी एक्सेंट निकालते हैं हिंदुस्तानी लोग, मैं आज तक नहीं समझ पाया यार, मत करो यार ऐसा, उससे तो आप हंसी का पात्र बनते हैं। Egalitarianism, a central promise of communism is the creation of an egalitarian society where men will truly be equal. ये सेंटेंस आप जरूर बड़े अच्छे से लिख लीजिएगा। A central promise of communism is the creation of an egalitarian society where men will truly be equal. क्या अर्थ होगा इसका? इसका बेसिक अर्थ ये होगा कि साम्यवाद का एक मूल वादा ये है कि हम एक ऐसा मानव समाज बना देंगे जहां सब बराबर होंगे, किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये ऐसा वास्तव में तो कभी हो ही नहीं पाया। Hence, communism as a philosophy couldn't really deliver, although those who are hardcore communists will disagree with this. Perfectly fine, no issues at all. We are not discussing communism right now. Meaning, इसका अर्थ है thought that all people are equal and must have the same right. तो ये बड़ा पॉजिटिव शब्द है। Theoretically, egalitarianism is a fantastic idea, जिसका मतलब है सभी लोग जन्म से बराबर है और सबके अधिकार सेम होने चाहिए। Synonyms देखिए, vocabulary का लेसन है, equality, equitability, non-discrimination, इवन हैंडेडनेस। ब्यूटिफुल वर्ड्स। इक्विटेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 10 बार जोर जोर से बोलना। वेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, द ट्रिक टू रिमेंबर इज छत पे चले जाओ, चिल्लाओ, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे पागल हो गया है लड़का या पागल हो गई है लड़की, गुड, यू आर ऑन द वे टू ग्रेटनेस। इक्विटेबिलिटी, इनिक्विटी, इनिक्विटस, चिल्लाओ 10-10 बार, आपकी जुबान खुलेगी। जुबान खुलेगी? सर मेरी जुबान तो बचपन से खुल गई, तू तड़ाक करके मैं तो बात करता हूँ, मम्मी डैडी को भी नहीं छोड़ता हूँ, क्या जबान खोलनी है सर, क्या बात कर रहे हो सर। इक्वालिटी, इक्विटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इवन हैंडेडनेस। एंटोनिम्स, इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। इनिक्विटी, डिसिमिलैरिटी, पोलैरिटी, कितना खूबसूरत शब्द है। डिफरेंशियल, कुछ याद आ रहा है पहले सेशन से आपको? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, व्हाई डिड आई डू लाइक दिस? डिफरेंशियल। तो यू विल ऑलवेज जेन्यूफ्लेक्ट व्हेन यू हैव अ डिफरेंशियल सेंस इन योर माइंड। बताइएगा इसका अर्थ क्या है जेन्यूफ्लेक्शन। डिफरेंशियल, डिस्टिंक्शन, इनिक्विटी, बहुत खूबसूरत शब्द है। इनिक्विटी गलती से 2 बार आ गया, प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दैट पार्ट ऑफ स्पीच। दिस इज अ नाउन, दिस इज अ थिंग। ये हमेशा टेक्निकल वर्ड है और इसका एडजेक्टिव होगा इगैलिटेरियन। तो यदि एडजेक्टिव है तो वो किसको डिफाइन करेगा? नाउन को डिफाइन करेगा। ग्रामर से भागो मत, ग्रामर बहुत सरल है। तो ये विशेषण यानी एडजेक्टिव इगैलिटेरियन हमेशा एक नाउन यानी संज्ञा को डिफाइन करेगा। एक सेंटेंस बना ले तुरंत। द इगैलिटेरियन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट वॉज लाइक बाय वन एंड ऑल। सरकार की समतावादी नीतियों ने सबका दिल जीत लिया। इगैलिटेरियन, क्योंकि उसने अप्रोच को क्वालिफाई किया। समझ में आ गया? इगैलिटेरियनिज्म तो एक वस्तु है, तो वो अपने आप में स्टैंड अलोन चीज हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच आपको हमने समझा दिया। यूजेज टिप, ये एक हल्का फुल्का शब्द नहीं है भैया। तो ऐसे ही सड़क पे चलते वक्त यहां वहां थ्रो मत करना। हाँ, दोस्तों पे इंप्रेशन झाड़ने के बहुत काम आता, ध्यान रखना बेटा। कई लोग हॉस्टल में बड़े हीरो बन रहे हैं आजकल ये सेशंस देख के। गुड, गुड फॉर यू। प्लस द टोन ऑफ दिस वर्ड इज वेरी पॉजिटिव, यूज स्पेयरिंगली एंड कॉशियसली दो। रूट, इसका फिर से उद्गम स्थल देख लिया जाए। इट इज फ्रॉम द फ्रेंच एगालिटेयर विच मीन्स इगैलिटेरियन। फ्रांसीसी क्रांति जो 1780 के दशक में आई थी, लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दुनिया को फ्रांस ने ये 3 शब्द दिए, लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे। इगैलिटेरियनिज्म को चित्रित करता हुआ ये एक इमेज, सिंबॉलिक ऑफ व्हाट इगैलिटेरियन कुड मीन। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ ये कार्टून, पढ़िए इसे। यू आस्क मी व्हाई आई एम अ फेमिनिस्ट। व्हाई आर यू अ फेमिनिस्ट? बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी। देन यू शुड कॉल योरसेल्फ एन इक्वालिस्ट और इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियनिज्म आ गया ना? I use feminist because my main focus is on the unequal status of women. So you only care about women? That's not equality, that's sexism. तो रेबेका कोहेन द्वारा बनाया हुआ ये खूबसूरत कार्टून एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है, सोचिएगा। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं भैया। इगैलिटेरियनिज्म की बात करने वाले 5 महापुरुष
करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया इनमें से कुछ लोगों ने, दो ने तो खास तौर पे। इनके नाम हमें कमेंट्स में बताइएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हु आर दीज 5 जेंटलमैन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री एज चैंपियंस ऑफ इगैलिटेरियनिज्म एंड एटलीस्ट 2 ऑफ देम वर मास मर्डरर्स विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट। अंडर कैपिटलिज्म मैन एक्सप्लॉइट्स मैन, अंडर कम्युनिज्म इज जस्ट द ऑपोजिट। समझ गए ना फर्क दोनों का? हमने यहाँ 11 वर्ड देखे, इगैलिटेरियन, इक्वालिटी, इक्विटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इवन हैंडेडनेस, इनइक्विटी, डिसिमिलैरिटी, पोलैरिटी, डिफरेंशियल, डिस्टिंक्शन, इनइक्विटी। हिंदी में इगैलिटेरियनिज्म के लिए बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं समता, समानता, एक रूपता, संतुलितता। ये बहुत अच्छे शब्द हैं, केयरफुली यूज कीजिएगा। सब समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्टिट्यूशन, वर्ल्ड इवेंट्स पे से, क्योंकि दुनिया में आज डेस्टिट्यूशन चारों ओर फैला हुआ है, कम या अधिक मात्रा में। समझना शुरू करें डेस्टिट्यूशन। For all the progress of modern civilization, it is strange to see destitution still persisting in some parts of the world. क्या अर्थ होगा इस बेहद खूबसूरती से बने हुए दर्दनाक वाक्य का? आधुनिक सभ्यता कितने भी तरक्की के दावे कर ले, बहुत ही दर्दनाक है और अजीब है ये देखना कि दुनिया के कुछ हिस्सों में निराश्रयता अभी भी कितनी प्रचुर मात्रा में फैली हुई है। इट इज स्ट्रेंज टू सी डेस्टिट्यूशन स्टिल परसिस्टिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? मीनिंग, एक्सट्रीम पार्टी वेयर वन कैन नॉट इवन फीड हिमसेल्फ वेल। 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है भैया, दैट काइंड ऑफ अ पार्टी इज डेस्टिट्यूशन। सिनोनिम्स, इसके समानार्थी शब्द होंगे पेन्यूरी, प्राइवेशन, मेंडिकेंसी, डिस्ट्रेस, डायपार्टी, इंडिजेंस। These are absolutely beautiful words which carry a lot of pain. ये बेहद खूबसूरत शब्द हैं जिनमें भयंकर दर्द बसा हुआ है। इन्हें याद रखना, क्योंकि ये याद नहीं रहेंगे तो ये कभी भी क्रैक नहीं हो पाएंगे। पेन्यूरी, प्राइवेशन, मेंडिकेंसी, डिस्ट्रेस, डायपार्टी, इंडिजेंस। तो मेंडिकेंसी यानी गरीबी, और जो गरीबी से त्रस्त हो गया वो मेंडिकेंट हो जाएगा। समझ गए? एंटोनिम, विलोम शब्द देख लो, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस यानी जहां भर भर के दौलत आ रही है। फ्लू इज द रूट, फ्लू यानी फ्लो होना। किसी भी शब्द में यदि फ्लू आया है, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में FLU, चांसेस आर इट हैज टू डू समथिंग विथ फ्लो। कॉन्फ्लुएंस, एफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, फ्लक्स, फ्लुएंसी, इन्फ्लुएंजा, एफ्लूवियम, एफ्लूवियम ट्रीटमेंट प्लांट। तो जब आप ऐसी ट्रिक्स यूज करेंगे तो व्हाई वोंट यू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? ये अरे क्या सर, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या कर रहे हो? सॉरी। एफ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी, ल्यूकर, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस भी एक बहुत खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है इतना अमीर होना कि वो वल्गर हो जाए। लग्जरी, वेल्थ, रिचेस, बहुत अच्छे शब्द हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज द नाउन, इट्स अ थिंग। करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव होगा डेस्टिट्यूट। यूजेज टिप, यूज इट ओनली व्हेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन इज टू बी कन्वेड। तो जब पार्टी की बात करनी हो तो डेस्टिट्यूशन यूज मत करना। Poor people can also take care of themselves, but destitutes cannot. This is a very fine difference which is often overlooked. Risk, the usage of this word is very negative and also slightly technical. Do you know that there is a thing called Global Hunger Index? वैश्विक भूख सूचकांक, ये है उनकी लेटेस्ट रैंकिंग्स। इंडिया रैंक्स 97 विद अ GHI स्कोर ऑफ 28.5। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वर्ल्ड वाइड कलर कोडिंग। समझ गए? द कलर एज यू कैन सी फॉर इंडिया सीरियस 20 to 34.9 मार्क्स यदि आपने स्कोर किए तो आपको ये कलर मिलता है। भारत 97 के साथ यहाँ पर है, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो हमने 14 वर्ड देख लिए, डेस्टिट्यूशन, पेन्यूरी, प्राइवेशन, मेंडिकेंसी, डिस्ट्रेस, डायपार्टी, इंडिजेंस, एफ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी, ल्यूकर, ऑप्यूलेंस, लग्जरी, वेल्थ एंड रिचेस। टोटल हो गए 37 वर्ड्स अभी तक। हिंदी में बहुत ही अच्छे शब्द हैं, निराश्रितता, अभाव, दारिद्र्य, अकिंचनता, गरीबी। जितना अंग्रेजी पढ़ें उतना ही हिंदी या आप जिस भाषा के, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, अपनी भाषा कभी छोड़ना मत, क्योंकि अंग्रेज तो तुम बन नहीं पाओगे। No matter how much of a fake accent you can try and develop as an Indian, you will never become an American or a Britisher, and definitely not an Australian. So it's better to remain an Indian. भारतीय रहो, भारतीय होने में गर्व महसूस करो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। वक्त के साथ तुम्हें ये बात खोपड़ी में घुस ही जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा ही अपनी तरफ से तो जोर लगा दूं। कंज्यूमरिज्म। अब हम आते हैं अगले बड़े वर्ल्ड से जुड़े एक शब्द पे, कंज्यूमरिज्म।
I shop, therefore I am seems to be the driving force of many societies today. Consumerism defines the modern man. कितना खूबसूरत वाक्य है. क्या कहता है कि मैं क्योंकि भौतिकता में पूरी तरह से फंसा हुआ हूं, हर समाज इसी बल पर चल रहा है, तो आधुनिक मानव को तो उपभोक्तावाद ने ही परिभाषित कर दिया है. मीनिंग, द मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म, इसके दो अलग अलग मीनिंग है भैया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. और नेगेटिव भी कुछ सोसाइटीज में नेगेटिव नहीं है. द फर्स्ट मीनिंग इज फिलॉसफी ऑफ एक्वायरिंग एवर मोर गुड्स. In a nation like America, this may not at all be considered negative, but in a traditional society like ours, consumerism will never become socially acceptable. उसके बहुत सारे बहुत गहरे कारण हैं. दूसरा पॉजिटिव मीनिंग है द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण. सिनोनिम्स, अब यदि हम कंज्यूमरिज्म को नेगेटिव सेंस में लेके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द देखें, कविटसनेस, क्या खूबसूरत शब्द है. ग्रीड, इनसेशिएबिलिटी, वाओ ब्यूटीफुल. डिजायर, सेल्फिशनेस, मटीरियलिज्म, ये शब्द याद रखना. याद रखोगे ना, कान पकड़ूंगा नहीं तो टीवी में से बाहर निकल कर. लैपटॉप सॉरी, मोबाइल सॉरी, आईफोन आईफोन आईफोन. कंज्यूमरिज्म, आईफोन, क्या नाइस कनेक्शन. एंटोनिम्स, विलोम शब्द, चैरिटी, लार्जेस, म्यूनिफिसेंस, फ्रुगैलिटी, एब्स्टिनेंस, एस्थेटिसिज्म. बहुत ही शानदार शब्द. चैरिटी, जब आप दानवीर हो जाएं. लार्जेस्ट, दिल खोल के आपने बांट दिया. म्यूनिफिसेंस, बड़ा दिल. फ्रुगैलिटी, बहुत कम खर्च करना, कंजूसी. एब्स्टिनेंस, हर चीज से बच के चलना. एस्थेटिसिज्म, हमने महादेव का एग्जाम्पल देके बम भोले बोला था एस्थेटिक के लिए, एब्स्टिनेंट लाइफस्टाइल के लिए, याद है ना. पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज ऑल्सो अ नाउन, और इससे जुड़े दूसरे शब्द हैं कंज्यूमर, कंज्यूम, कंजम्पशन. जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अभी सबसे बड़े खतरे की घंटी क्या बज रही है? अवर एक्सपोर्ट्स आर डाउन, आवर रुपीज हाई, दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स विल फर्दर गो डाउन एंड बी एडवर्सली इम्पैक्टेड. इंपोर्टर्स विल बी रॉकिंग. Our investment cycle has practically paralyzed and the whole economy seems to be moving purely on consumption. समझ में आया क्यों ये एग्जाम्पल दिया? ज्यादा भारी हो गया क्या? Usage tip, this is the prevailing world philosophy. So be happy, consume, risk. One meaning is negative or neutral if you are an American, for example, and the other is technical. जॉर्ज कार्लिन क्या कहते हैं? Trying to be happy by accumulating possessions is like trying to satisfy hunger by taping sandwiches all over the body. Ha ha ha, Carlin साहब, you never fail to amaze. This is the ultimate icon of consumerism, उपभोक्तावाद का चिरकालिक सिंबल. भारतीय संस्कृति के हितोपदेश से आपके लिए मैं एक उपदेश लाया हूं भैया. संस्कृत जरा याद रखना. विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम. क्या खूबसूरती से कहता है हितोपदेश. हमें बताइएगा व्हाट इज हितोपदेश. नॉलेज गिव्स ह्यूमिलिटी, फ्रॉम ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन यू अर्न वर्दीनेस, यानी पात्रता. फ्रॉम वर्दीनेस यू गेट वेल्थ. इसका मतलब हमारी संस्कृति में तो हमें यह बताया गया कि जब तक पात्रता नहीं आएगी तुम धन की आशा मत करो. तो हमने तो सब कुछ छोड़ दिया उसको. इतनी अच्छे संस्कार थे, सब छूट गए. फ्रॉम वेल्थ वन डज गुड डीड्स एंड फ्रॉम दैट कम्स जॉय. तो यहां पे धर्म से अर्थ है सही कर्मों से. धर्म हमेशा यही रहा है भारत में. कॉन्ट्रास्ट दिस विद आवर वैल्यूज टुडे. और आप देख सकते हैं किस तरह अपने सारे संस्कारों को खड्डे में, सॉरी अरेबियन सी में डाल देने का नतीजा आज का हमारा बीमार भारत. तो ये आप संस्कृत का श्लोक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा. तो हमारे बाबा रामदेव के लिए हम तालियां बजा के स्वागत करते हैं. मटीरियलिज्म के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू की और आज देखिए ये चित्र क्या बताता है. 13 words discussed: consumerism, covetousness, greed, insatiability, desire, selfishness, materialism, charity, largesse, munificence, frugality, abstinence, asceticism. हिंदी में बड़े खूबसूरत शब्द: उपभोक्तावाद, पदार्थवाद, वस्तुवाद, भौतिकतावाद या भौतिकवाद. बहुत ही खूबसूरत शब्द. इनसे बचना नहीं तो बहुत दुखी रहोगे. आज का हमारा आखिरी शब्द रेनेसां. रेनेसां? नो सर, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेनेसांस है सर. हाँ मेरे अमेरिकी दोस्त, अभी प्रोनाउंसिएशन पर भी आ रहे हैं. ठंड रख. If you're tired of life and not getting anywhere, it's time to look inside and attempt a renaissance. Life's too precious to waste. क्या खूबसूरत वाक्य. खुद की कितनी तारीफ करता हूं मैं. खूबसूरत वाक्य, खूबसूरत वाक्य. यदि आप जीवन से दुखी हैं और आपका जीवन कहीं जाता दिख नहीं रहा है तो समय आ गया कि आप भीतर झांकें और एक पुनर्जागरण की कोशिश करें. जीवन बहुत अमूल्य है बर्बाद करने के लिए. ये इसका अर्थ हुआ, समझ गए. मीनिंग रेनेसांस. अब इस पे प्रोनाउंसिएशन पे पहले बात कर लेते हैं. नीचे देखिए चौथे पॉइंट पे. The American pronunciation would be Renaissance. 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 The British would be Renaissance.
तो अब आप अपने आप को अमेरिकन समझते हो या ब्रिटिश समझते हो, उस हिसाब से तय कर लो, जो भी है जो आपको ठीक लगे। अगर आप बिल्कुल खालिस हिंदुस्तानी आदमी हो मेरे जैसे, तो रेनेसां भी बोलोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। इट्स अप टू यू। बट एनीवे, आई ट्राई टू मेक अ स्लाइटली डीपर पॉइंट देयर। आई होप यू गॉट द आइडिया। इसके अर्थ देख लीजिए, दो अलग अलग अर्थ हैं। सबसे पहला फ्रेश रिवाइवल ऑफ समथिंग, किसी चीज को बिल्कुल ताजे तरीके से फिर से पुनर्जीवित करना। दूसरा है द स्पेसिफिक इवेंट, रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड कल्चर इन द 14th एंड 15th सेंचुरी। 14वीं और 15वीं सदियों में जो यूरोप में अचानक से क्रांति आई, पुनर्जागरण का काल आया, और जिसमें आर्ट और कल्चर, यानी लियोनार्डो दा विंची, भूलना मत। सिनोनिम्स, रेजरेक्शन, रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रेस्टोरेशन, रिवाइवल। एंटोनिम्स, डिसोल्यूशन, समाप्त हो जाना, एंडिंग, एब्रोगेशन, कैंसल हो जाना, डिसिपेशन, डेथ, इरेडिकेशन। दीज आर सम रियली गुड वर्ड। अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक नाउन है, संज्ञा है। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन रेनेसांस, ब्रिटिश रेनेसांस। यूजेज टिप, इट्स अ पावरफुल वर्ड, यूज विथ केयर। इधर उधर फेंकते मत रहना, नहीं तो फेंकू बन जाओगे। एग्जाम्पल्स वी सी सम नाउ। अब आपको 3 और उदाहरण देता हूं। एज यू अप्रोच योर 50s, इट्स टाइम टू टेक स्टॉक एंड डिस्कार्ड व्हाट्स यूजलेस। द रेनेसांस विल अमेज यू। इसका अर्थ हमें बताइएगा। इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एक्सपेक्टिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ अ नेशनल रेनेसांस. Citizens need to realize it will take time. The renaissance of educational values in our schools and families will be the harbinger of a good future. ये तीनों वाक्य हमने विशेष तौर पे आपके लिए बनाए हैं। हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसे लगे। लियोनार्डो दा विंची, बीच में जो सज्जन के चित्र उन्होंने बताया है, ये क्या है, ये क्यों बनाया गया, इसका नाम क्या है, बताइएगा। और राइट साइड में तो आपको पता ही है, द मिस्टीरियस माइंड। 12 वर्ड्स हमने देखे, रेनेसांस, रिसरेक्शन, रिन्यूअल, रिसर्जन, रेस्टोरेशन, रिवाइवल, डिसोल्यूशन, एंडिंग, एब्रोगेशन, डिसिपेशन, डेथ, इरेडिकेशन, नवजागरण, नवयुग, पुनरुत्थान। उम्मीद करते हैं आपको बेहद मजा आया होगा। कितने बढ़िया बढ़िया 62 वर्ड्स हमने देखे। सेशन को बार बार देख के, नोट्स बना के प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिनों में ये सब याद हो, और एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएंगे। अभी आपको कुछ प्रैक्टिस क्विज भी करा देता हूँ। इंजॉइंग, आपके सारे उत्तरों का मुझे इंतजार है भैया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वर्ड्स वी हैव लर्न टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज दिस रॉन्ग, इसमें क्या गलत है। द रेजरेक्शन ऑफ द एनाहिलेटेड वैल्यूज विल क्रिएट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। यदि आज के शब्द आपने समझ लिए हैं तो 1 2 3 4 5 में से हमें बताइए सही उत्तर क्या है। इज इट 1, इज इट 2, इज इट 3, इज इट 4, or is it 5? The correct answer here is 5, both 1 and 3. Which values? That's not specified. And egalitarianism is usually in the material sense. तो अब हम देखें सेंटेंस वापस। रेजरेक्शन यानी पुनर्जागरण या पुनरुत्थान ऑफ द एनाहिलेटेड, एनाहिलेटेड यानी पूरी तरह से विनाश हो चुके मूल्यों का, विल क्रिएट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, समतापरक समाज बनाएगा। लेकिन यहाँ वैल्यूज हमें नहीं बताई गई हैं। कौन सी वैल्यूज? अगर ये प्योरली धार्मिक वैल्यूज होंगी तो समतापरक समाज उससे शायद ना बन सके, तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 कहता है एगैलिटेरियनिज्म इज यूजुअली इन द मटीरियल सेंस, ये भी बिल्कुल सही है। हेंस बोथ 1 and 3। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। इनइक्विटी इज टू एगैलिटेरियनिज्म, तो आपको बताना है सेम रिलेशनशिप कौन से ऑप्शन में है। 1, 2, 3, 4 और 5। कंज्यूमरिज्म इज टू स्पिरिचुअलिज्म, annihilation is to resurrection, obliteration is to renaissance, affluence is to privation, or all of them. The correct answer is all of these. Iniquity and egalitarianism are mutually opposites. समझ में आ रहा है ना? आपस में ये ऑपोजिट आइडियाज हैं। कंज्यूमरिज्म, स्पिरिचुअलिज्म तो उल्टे हो गए ना एक दूसरे के। एनाहिलेशन और रिजरेक्शन उल्टे हो गए ना। ऑब्लिटरेशन एंड रेनेसांस भी अपोजिट्स हैं। एफ्लुएंस और प्राइवेशन भी अपोजिट है। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तालियां तालियां तालियां। फाइंड द ऑड वन आउट। इन 5 में से कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? इज इट 1, इज इट 2, इज इट 3, इज इट 4 और इज इट 5? दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज इनिक्विटी इज टू डिफरेंशियल, बिकॉज दीज आर सिनोनिमस आइडियाज। इनिक्विटी एंड डिफरेंशियल सिनोनिमस हैं या एंटोनिमस हैं? बताइए। Iniquity and differential are synonymous ideas, whereas if you look at the others, nurturing and supporting,
renaissance and revival of art, consumerism and philanthropy, they are definitely not in the same flow. Which of these is incorrect? When something is iniquitous, it may be bad. If someone is in penury, we should help. Privation can make all values evaporate. Destitution is a blot on humanity's face. None of the above. इनमें से कौन सा गलत है बताइए. 5 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं. 5, 4, 3, 2, 1. क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए इसका उत्तर? What do you think is the answer? The correct answer here is none of the above, because all of them actually indicate the same thing. Destitution is a blot on humanity's face, yes or no? It is. Privation can make all values evaporate, it can. If someone is in penury, we should help, we should. When something is iniquitous, it may be bad, बिल्कुल सही है. अब एक छोटा सा करेक्शन आपको बता दूं. पिछले क्वेश्चन का आंसर वॉज नॉट 5th, इट वॉज 4th. आई एम सॉरी, गलती से मैंने मार्क वहां लगा दिया था. आई रियलाइज इट, आई एम मेकिंग अ करेक्शन राइट हियर. फिर से समझ लीजिए. फाइंड द ऑड वन आउट. होलोकॉस्ट इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, सिनोनिमस है. नर्चरिंग रिफर्स टू सपोर्टिंग, बिल्कुल ठीक है. रेनेसांस इज डेफिनेटली अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर. इनिक्विटी इज डिफरेंशियल, बट कंज्यूमरिज्म एंड फिलैंथ्रोपी आर म्यूचुअली ऑपोजिट आइडियाज. आई रिग्रेट दैट एरर, बट यहीं के यही हमने करेक्ट भी कर दिया. ग्रेट. वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. चलो भैया जल्दी करो, सेशन कंप्लीट करूं. आज का सेशन जरा लंबा हो गया. The blank scene in Syria and Iraq where ISIS tried taking over was definitely not an example of blank. बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर? कंज्यूमरिज्म एंड डेस्टिट्यूशन नहीं हो सकता. प्रोस्पेरिटी तो था ही नहीं, तो सेकंड गया. कार्नेज प्रोस्पेरिटी हो सकता है, कार्नेज इज होलोकॉस्ट. डेस्टिट्यूशन एंड कंज्यूमरिज्म भी नहीं हो सकता. द करेक्ट आंसर हैज टू बी थर्ड, which is the carnage scene in carnage है ना, बहुत large scale destruction when ISIS tried taking over was definitely not an example of prosperity. We now conclude the session with another motivational thought. Don't raise your voice, improve your argument. चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अपने तर्कों में जोर लाओ. उसके लिए चाहिए नॉलेज, बिकॉज कंटेंट इज किंग. तो अपने नॉलेज पे बहुत मेहनत करो. So we come to the end of the session today. Make sure you keep using all the services available in the Bodhi Booster Knowledge Portal. और आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा. इस तरह ये यात्रा जब तक आपका साथ है हम चलाते रहेंगे. A very good news for everyone. In my next session, I am going to announce a very special course which you can enroll in for your English improvement. In my next session, that announcement and the enrollment link will also be given to you. ये sessions vocab booster के तो चलते रहेंगे. These will always be free forever. But an additional course for those who are very sincere and want a much more in-depth learning will also be soon available based on the amazing response we are getting. आज के लिए इतना ही. बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी. नमस्ते, जय हिंद. BB Education करके दिखाएंगे.